आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अब शजबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। रियासती वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कहा कि रियासत के 1200 मराकज़ पर ड्राई रन मुनक़िद करने का फैसला किया गया है। कोरोना के पहले डोज को खुद लेने के लिए रियासती वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र ने फैसला लिया है। इटाला राजेंद्र ने कहा कि मेरे टीके लेने से अवाम में एतमाद हासिल होगा। उन्होंने हिदायत दी कि निम्स दवाखाने आने वाले मरीजों को वापस ना किया जाए, फौरी इन्हें दवाखाने में शरीक करते हुए इलाज किया जाए। इटाला राजेंद्र ने कहा कि कोरोना वायरस पर गलत अफवाहें सामने आ रही हैं, इनमें किसी किस्म की हकीकत नहीं है। अवाम खुद की और ख़ानदान की हिफाजत के लिए टीका लें। किसी को ज़बरदस्ती टीका नहीं दिया जाएगा, राज़ी से टीका लिया जाएगा। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन में TPUS की तबाअत करदा नए साल की डायरी का रस्मी इजराई अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए बताया, तेलंगाना के TRS हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में TI पास का क़याम अमल में लाते हुए बड़े पैमाने पर मुलाजिमतें फराहम करने के इक़दामात कर रही है और इसमें काम करने वालों को सरकारी मुलाजिमीन की तरह सहूलतें फराहम की जा रही हैं। हरीश राव ने बताया कि मरकजी हुकूमत स्कॉल डेवलपमेंट के बड़े पैमाने पर तशरीह तो कर रही है, लेकिन इसमें दरकार सहूलतें फराहम करने में नाकाम है। उन्होंने खानगी शोबे में काम करने वाले मुलाजिमीन को तयक़ुन दिया कि हुकूमत इनकी हर तरह की मदद करेगी। వాళ్ళు అసలు ఇండియాకు రావడమే గొప్ప అంటే ఇండియాలో హైదరాబాద్కు రావడం అనేటువంటిది మనందరికీ కూడా ఎంతో గర్వకారణం. ఇలా అమెజాన్ కానీ, మైక్రోసాఫ్ట్ కానీ, యాపిల్ కానీ, గూగుల్ కానీ, ఫేస్బుక్ కానీ, ఊబర్ కానీ, ప్రాక్టర్ అండ్ గ్యాంబుల్ కానీ, ITC కానీ, జాతీయ అంతర్జాతీయ కంపెనీలు ఎన్నో కంపెనీలు ఈరోజు హైదరాబాద్లో పరిశ్రమలు పెట్టడానికి, మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు పెట్టడానికి వారు ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. ఇటు IT రంగంలో, అటు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో, ఇటు అన్ని రంగాల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున కూడా మనకు పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి. కనుకనే ఈరోజు నిరుద్యోగ రేటు మనం ఒకసారి చూస్తే భారతదేశంలో అతి తక్కువగా ఉండే 3 రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒకటి. వాస్తవానికి భారతదేశంలో చూస్తే జాతీయ స్థాయిలో నిరుద్యోగ రేటు కంటే తెలంగాణలో నిరుద్యోగ రేటు చాలా చాలా తక్కువగా ఉంది. కారణం ఏంటంటే ఇటు ప్రభుత్వ రంగంలో కూడా తెలంగాణ వచ్చిన 6.5 సంవత్సరాల్లో 1,28,000 మందికి ఇప్పటికీ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాం. ఈ మధ్యనే ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు, మిగిలిన ఉద్యోగాలు కూడా భర్తీ చేస్తాం. దాదాపు ఇంకో 50,000 ఉద్యోగాల్ని ప్రభుత్వ రంగంలో భర్తీ చేయడానికి కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఇలా అనేక మంది ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్లు వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ నెలాఖరులోపు అందరికీ కూడా ప్రమోషన్లు ఇచ్చి ఆ మిగిలిన ఖాళీలను కూడా భర్తీ చేసే దిశగా ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది. ఇప్పటికే 1,28,000 భర్తీ చేసుకున్నాం. మరో 50,000 కూడా భర్తీ చేయడానికి ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం కూడా మీకు తెలుసు. అంటే ఇటు ప్రైవేట్ రంగంలో TSI పాస్ లాంటి కార్యక్రమం దేశానికే మొదటిసారిగా తెలంగాణలో తేవడం ద్వారా ఇటు ప్రైవేట్లో పెట్టుబడులు ఆకర్షించడం, ప్రైవేట్ రంగంలో ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా మెరుగుపడ్డాయి. ఇటు ప్రభుత్వ పరంగా కూడా చేసుకుంటూ పోతా ఉన్నాం. ఇలా కొత్త జిల్లాలు ఏర్పడి కూడా చాలా మేలు జరిగింది. ఇలా ప్రజలకు దగ్గరగా పరిపాలన జరుగుతూ ఉంది. కొత్త జిల్లాలు ఏర్పడడం వల్ల అనేక కొత్త పోస్టులు మంజూరైనాయి, చాలా మంది ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు వచ్చినాయి. ఇట్లా చాలా మేలు జరిగినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మా తెలంగాణ ప్రైవేట్ వాళ్ళు అసలు ఇండియాకు రావడమే గొప్ప అంటే ఇండియాలో హైదరాబాద్కు రావడం అనేటువంటిది మనందరికీ కూడా ఎంతో గర్వకారణం. ఇలా అమెజాన్ चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने BRK भवन में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात तमाम महकमा जात के मुलाजमीन की तरक्की का जायजा लेने के अलावा इजला में धरनी पोर्टल के जरिए ज़राई अरजियात की रजिस्ट्री और अरजियात की तफसीलात के मुताल्लिक तबादला ख्याल करने के अलावा देहात में किए जाने वाले प्ले प्रगति प्रोग्राम के दौरान किए जाने वाले तरक्याती इक़दामात से मुताल्लिक तफसीलात हासिल करते हुए कई एक हिदायतें दी। वोट बराए नोट का केस ACB अदालत में चल रहा है। केस की समाअत जारी है। रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी उदय सीमा वेस्टर्न अदालत हाजिर हो रहे हैं।
रेवंत रेड्डी ने अर्जी दाखिल की कि ये केस कौंसिल से ताल्लुक रखता है, इसलिए इस केस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुंतकिल करने की दरख्वास्त की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर मुझ पर 72 केसेस दर्ज करवाए हैं। मैं हर रोज नामपल्ली कोर्ट से रुजू हो रहा हूं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि ना मैं बैंकों को धोखा दिया, ना ही डाकाजनी की, ना ही मारपीट की, सिर्फ सियासी मफाद के लिए मुझ पर केसेस दर्ज किए गए। तेलंगाना डीजीपी महेंदर रेड्डी ने ट्वीट करते हुए बताया कि दुनिया भर में सीसी कैमरे निस्ब करने के सिलसिले में हैदराबाद को एयू के ऑर्गेनाइजर की जानिब से किए गए सर्वे में हैदराबाद को दूसरा मुकाम हासिल हुआ है। सीसी कैमरे निस्ब करने के सिलसिले में हैदराबाद लंदन जैसे शहर को भी पीछे कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक यू के ऑर्गेनाइजर ने दुनिया भर के 110 शहरों का सर्वे किया, जिसमें हिंदुस्तान के चेन्नई शहर को पहला मुकाम और हैदराबाद को दूसरा मुकाम हासिल हुआ। हैदराबाद में मेट्रो रेल खिदमात में तकनीकी खराबी के बायस खलल पड़ा। 2 कॉरिडोर्स में तकनीकी खराबी की वजह से मेट्रो रेल खिदमात रुक गई। एलबी नगर, मियापुर, नागुल, राय दुर्ग रूट पर मेट्रो रेल ताखीर से चल रही है। असेंबली स्टेशन के पास मेट्रो रेल 30 मिनट तक के लिए रुक गई, जिसकी वजह से अमीरपेट की समीत जाने वाली मेट्रो रेल रुक गई। मेट्रो खिदमात में खलल की वजह से खास तौर पर रेल के जरिए दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बीजेपी के नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स ने हरिता टूरिज्म प्लाजा में इजलास मुनक्किद करने के बाद सीएम कैंप ऑफिस पहुंचते हुए जीएचएमसी कौंसिल का इजलास तलब करने और नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स को हक दिलाने का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने नौमुंतखबा बीजेपी कॉरपोरेटर्स को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन रवाना कर दिया। बीजेपी के खातून कॉरपोरेटर ऑटो के जरिए प्रगति भवन पहुंचते हुए एहतजाज किया। हैदराबाद की मशहूर फार्मा भारत बायोटेक ने कोरोना टीके को वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी जल्दबाजी में की जा रही है। भारत बायोटेक के सीएमडी कृष्णा अल्ला ने कहा कि दुनिया में वैक्सीन को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि इसको हिंदुस्तान में तैयार किया गया है। इस वैक्सीन पर सियासत करना अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर मुकम्मल डाटा तैयार किया है और यह अवाम के लिए दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की तैयारी के लिए हंगामी तिब्बी जरूरियात की तकमील की गई, इसमें हर मुमकिना एहतियात किया गया। We have done 1 million children have been volunteered in our clinical trial, which I will touch upon a little bit. And WHO said our Taiba TCV with the first product in the world to come out. We have proven that India can innovate. India is not a copycat country. India can innovate. And we are the first conjugate vaccine we developed, and WHO said it's a breakthrough vaccine for typhoid control. It's very important because a lot of antibiotic resistance is happening globally, and this vaccine is a savior for that antibiotic resistance problem. And I think Gary also said it's going to save a lot of children in typhoid fever. And we have done human challenge studies right in Oxford. Nothing new that. And we are doing a clinical trial in Pakistan. We are doing in Nepal. We are doing in Bangladesh.
We are doing now Mumbai in Bombay with the CDC and ICMR collaboration. We are doing with University of Liverpool and University of Maryland partnership, Malawi and Burkina Faso. The reason why I want to say that, we are not a true Indian company. We are truly global company. We are doing a trial, multi countries in the world, that people should not accuse us we don't know the clinical research experience. That's my point here. And I think Nature Medicine in 2018 said, the treatment that made a headline in the globally 2018, our typhoid conjugate vaccine was mentioned. Probably this is the first in the Nature Medicine from the developing world. No, not a single product from Nature developing world has mentioned in the Nature Medicine to trial various part of it. We have done 1 million children have been volunteered in our clinical trial, which I'll touch upon a little bit. And WHO said our typhoid TCV with the first product in the world to come out. We have proven that India can innovate. India is not a copycat country. India can innovate. And we are the first conjugate vaccine we developed, and WHO said it's a breakthrough vaccine for typhoid control. It's very important because the lot of antibiotic. आंध्र प्रदेश बीजेपी सदस्य सोमा राजू वीरा की क़यादत में आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर किए जाने वाले हमलों के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया और बीजेपी कारकुनों ने एपी हुकूमत और वाईएस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने सदर रियासती बीजेपी सोमा राजू और बीजेपी कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन रवाना कर दिया। तेलंगाना में मुसलसल एक हफ्ते से कोरोना वायरस के केसों में कमी वाक़ई हुई है। ताज़ा तौर पर पीर के दिन 253 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 3 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,87,993 हो गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना केसेस में कमी, 24 घंटों में 128 नए केसेस, मजमूई तादाद 8,83,000 से तजावुज़। मुल्क में दूसरे दिन भी कोरोना वायरस के तकरीबन 16,000 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं सेहतियाबी होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफे की वजह से एक्टिव केसेस की शरह 2.25% से कम हो गई है। मरकजी वजारत बराए सेहत की जानिब से मंगल के रोज जारी एदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 16,375 नए केसेस सामने आए हैं, जिसकी वजह से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 1,03,56,000 से तजावुज़ कर गई है। पीर को नए केसेस की तादाद 16,504 थी। दुनिया में 24 घंटों में 5 लाख कोरोना केसेस, मजमूई तादाद 8,60,00,000 से तजावुज़। सुप्रीम कोर्ट मरकजी सरकार के अहम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर अर्जियों पर आज अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस AM खानविलकर की सरबराही वाली बेंच 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ 5 अर्जियां दायर की गई हैं, जिसमें दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जमीन के इस्तेमाल को तब्दील करने की नोटिफिकेशन, माहौलियाती खदशात को नजरअंदाज करने वगैरह को चैलेंज किया गया है। अदालत ने तवील समाअत के बाद गुज़िश्ता साल 5 नवंबर को फैसला महफूज कर लिया था। इस दौरान अदालत ने नए पार्लियामेंट हाउस के संग बुनियाद को मंजूरी दे दी थी, लेकिन फैसला आने तक मौजूदा ढांचे में किसी किस्म की छेड़छाड़ करने से रोक दिया था। जस्टिस खानविलकर ने 7 गुज़िश्ता दिसंबर को मामले की हतमी निपटारा न होने के बावजूद तामीराती काम आगे बढ़ाने के ताल्लुक से गहरी नाराजगी का इजहार किया था और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा था, कोई रोक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बेंच की नाराजगी का सामना करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने हुकूमत से हिदायत हासिल करने के लिए 1 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन अदालत ने इसी दिन सरकार से बातचीत करके वापस आने के लिए था और कुछ देर के लिए समाअत रोक दी थी। थोड़ी देर बाद मिस्टर मेहता वापस आ गए थे और माफी मांगते हुए अदालत को यकीन दहानी कराई कि कोई तामीर तोड़फोड़ की कटाई नहीं होगी, संग बुनियाद रखा जाएगा, लेकिन कोई और तब्दीली नहीं होगी। तेलंगाना के जिला वखराबाद के मोमिनपेट के करीब खौफनाक सड़क हादसे में आरटीसी बस मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके नतीजे में
मोटरसाइकिल शोलापोश हो गई और मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में गंगलूट पुलिस स्टेशन के तहत हरमंगुंडा जंगलात के इलाके में डीआरजी और सीआरपीएफ फोर्सेस के मुश्तरका सर्च ऑपरेशन के दौरान माओवादियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। फौरी तौर पर इंतबाह करने वाले जवानों ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस के हमले को बर्दाश्त करने से कासिर माओवादी मुल्हका घने जंगल में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जंगबंदी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाए मौके से बड़ी तादाद में माओवादी असलाह और गोला बारूद कब्जे में ले लिया। अभी इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।